So we are starting the class actually. Hello everyone. So welcome back to my channel Anis Sir's Technology. In this lecture we are going to discuss the loops continuation in the Java. Basically in the last lecture we have already discussed what is loop. So just for a small recap, very small recap, what is loop? A repetition of single or group of a statement are called loop. एक स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं till the condition is true, then this is called looping. We have also seen the importance of looping. If we don't use the loop in our program, then we have to write a very lengthy codes, lengthy programs, with the improper logic, जिसकी कोई proper logic ना हो. Now my second question is that how many types of loop? How many types of loop? A very important question. There are two types of loop. All right. There are only two types of loop. One is entry control loop. The second one is exit control loop. Okay. If we talk about the entry control loop, so what are the loop comes under this category? It's a very important discussion in the theory. Two loops comes under entry control loop. One is while, the another one is for. These are entry control loop. Okay. Now what about the exit control loop? Only we are just discussing the theoretical section. Only one loop is the exit control loop, that is do while. Understand? अगर हम एंट्रेंस के टाइम पर जहां पर हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पर अगर हम कोई कंडीशन सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप. विदाउट सेटिस्फाइंग द कंडीशन वी कैन नॉट एंटर इन द लूप. दिस इज कॉल्ड द एंट्री कंट्रोल लूप. एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है जहां पर हम लूप को एग्जिट कर रहे हैं, वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप. At that point, if we are checking the condition, that is called the exit control loop. Okay, just 1 second. I want to explain you with the example. Suppose this is an hall, picture hall. Okay, and this is the entrance point or entry point. Okay. And the lot of people are coming to watch the movie. These are the people are coming to watch the movie, just like a theater picture hall I'm talking about. So at the time of entrance, this is the entrance, one person is there. One person is standing over there and checking the tickets. जिसके पास टिकट है वो अलाउ होगा और जिसके पास टिकट नहीं है वो यहीं से वापस कर दिया जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल. मींस वी आर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस. तो एंट्रेंस के टाइम पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है एंट्री कंट्रोल प्रोसीजर. और एंट्री कंट्रोल प्रोसीजर को ये दो लूप बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी लूप स्टार्ट नहीं होगा. इफ द पर्सन डज नॉट हैव द टिकट, ही और शी विल नॉट टेक द एंट्री इनटू द पिक्चर हॉल. होप यू आर गेटिंग. तो दिस इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप. नाउ व्हाट अबाउट एग्जिट कंट्रोल लूप? एग्जिट का मतलब है हमने सबको अलाउ कर दिया. आई एम अलाउइंग ईच एंड एवरी पर्सन. और जहां पर हम एग्जिट करा रहे हैं कैंडिडेट्स को या पर्संस को, वहां पर हम टिकट को चेक कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? मतलब वी आर चेकिंग द टिकट एट द एग्जिट पॉइंट, नॉट एट द एंट्री पॉइंट. तो इससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि जिनके पास टिकट नहीं है वो भी पिक्चर हॉल के अंदर इंटर हो जाएंगे.
बाद में ये पता चलेगा prior we came to know that the person does not have the ticket. So it is a little bit risky loop. मतलब हम प्रॉपर इंश्योर नहीं हो पाते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके पहले ही हम लूप को एग्जीक्यूट करा देते हैं. तो इसको हम बहुत ही रेयरली यूज करते हैं. सबसे ज्यादा जो हमारे लूप्स यूज होते हैं वो व्हाइल यूज होते हैं. तो अभी हम इन द स्टार्टिंग लेक्चर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टू टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर लूप. बट यहां पर आपको कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया कि बेसिकली फॉर लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप के कैटेगरी में आता है. व्हाइल लूप is an entry control loop, but do while is an exit control loop. Understand? This classification is clear to all of you? Can you please respond? This difference is understand to all of you? Some are entry control loop, some are exit control loop. Very good. Excellent. This is a very important topic for the theoretical point of view. Excuse me? Yeah? Okay, fine. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. जस्ट 1 मिनट. सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप. ओके, व्हाइल, देन आफ्टर दैट वी हैव टू पुट अ कंडीशन, देन स्टेटमेंट्स. Already we have discussed, no problem. Okay, now what about the syntax of do while loop? Okay, just 1 second please. ठीक है, अगर हम do while loop के syntax के बारे में बात करें तो पहले हम लिखते हैं do, उसके बाद statements होते हैं stmt1, okay, semicolon. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने स्टेटमेंट चाहें उतने स्टोर कर सकते हैं. इट विल एक्सेप्ट इजिली, इट विल बी एक्सेप्टेड इजिली. stmt3, stmt4, नो प्रॉब्लम. और फिर यहां पर while होता है, और while के बाद we put condition and semicolon. तो आप यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करनी है. You have to observe. Don't worry about the programming. That I will take care. सबसे पहले कंडीशन है, उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं. मतलब अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है, then statement will not execute. पहले कंडीशन टेस्ट होगी, बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. This is the structure or a syntax of the while loop. But in do while you can see, first statements are executing, and after that the condition is checking. Understand? So this is called basically exit control loop. Okay, all the alternative years आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो जल्दी से हम 2-3 डिफरेंसेस लिख लेते हैं while और do while के. Then after that we will move to the new topics. Just 1 second please. Okay, while loop, and this is do while loop. Clear? 1 minute please. Okay, number 1, the very first difference is, okay, very first difference is while is entry control loop. Understand? Do while exit control loop. It is also called top tested. It is called bottom tested loop. Bottom tested loop. Third point is that in which first condition test, then loop execute, then loop execute. Just 1 minute. Then loop execute. If
condition is false, then loop will not execute. अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट हियर इन विच फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट देन कंडीशन टेस्ट. इसमें क्या होता है, पहले लूप एग्जीक्यूट होता है, बाद में कंडीशन टेस्ट होती है. If condition false, in that case loop will execute at least once. This is the drawback. अगर condition false है तब भी एक बार loop चल जाएगा, because condition is checking at the exit point and loop is executing before that. That's the reason. Please go through these 3 points and please tell me if you have any problem. Take your own time. Clear? Clear to all of you? Very good. Syntaxes we have already seen. Okay? अब देखो स्टेटमेंट का मतलब होता है वो प्रोग्रामिंग कोड जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं. ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकते हैं. It may be of system.out.println C, D. It may be C is equal to C plus 1. It may be any condition. कुछ भी हो सकता, whatever. Any. Statement means any. You will not believe, लेकिन statement पे भी एक question पूछा गया. Statement means any programmatic, any Java programmatic code. ओके कोई भी जावा का प्रोग्रामेटिक कोड हो सकता है. ऑलराइट, मे बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मे बी अ काउंटर वेरिएबल लाइक c is equal to c plus 1, c is equal to c minus 1, any calculation, sum is equal to sum plus c, anything. These are all statement consider as us. These are all the code actually consider as a statements. Hope you understand the meaning and definition of a statement. Okay, fine. Now, moving to the next section, difference between the while and do while practical. Practically difference between. Okay. Now, for practical, we have to move towards the sorry, your voice is not audible. Okay. Just 1 second. Now my voice will be clear. Actually, someone is calling to me. Okay. Now, just 1 second, please. I want to start the Java environment. Okay. And we have also created one loop demo. Just I want to remove all this. Okay. Very important example. While c less than equal to 5, a very simple small loop. Small things are very important. Okay, very small loop. Just 1 second. I'm using the println. Now see. Now look at the example actually. Here c is equal to 1. c less than equal to 5. जब तक c की वैल्यू 5 से कम है, this loop will execute and print all the values of c. So what output will come? 1, 2,
3, 4, and 5. Understand? This will be the output of this fragment. Just one second. I just want to show you. I know these things I've already explained. You don't worry. Okay. Done? Okay. कुछ नया बनाने से पहले बेस और कॉन्सेप्ट हमको पुराने प्रोग्राम्स का लेना पड़ता है. Just one second. Now, अगर हम यहां पर C की वैल्यू को 10 कर दें, then what will happen? आराम से देखिए और समझिए. प्लीज क्लियर. एवरीबडी शुड बी क्लियर ऑल दिस थिंग्स. अगर हम C की वैल्यू को 10 कर दें, तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन विल चेक. मतलब किसी पर्सन के पास सेकेंड शो का टिकट है और वो फर्स्ट शो में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन विल चेक क्या C लेस देन इक्वल टू 5 है. नो, एब्सोल्युटली नो. C is equal to 10 and C less than equal to 5 condition is false. So loop will not execute. Loop will not execute. So no output will come. Just for a second, please. What I'm trying to say. No output is coming. You can see that. No output window is coming actually. No output is coming. Because condition is false. So loop is not executing. If loop is not executing, so output will not generate. This is the while loop. It's strictly following the while loop. Now, just one second, please. Do while loop. Do while loop. अभी do while loop में इसको मैं comment कर देता हूं. I'm just doing the comment. क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं, अब हमें डू वाइल लूप देखना है. तो डू वाइल लूप में क्या होगा? int c is equal to 1 to println c. ठीक है, अभी कंडीशन नहीं आ रही है बिकॉज कंडीशन विल सेट और एडजस्ट इन द लास्ट. हियर while C less than equal to 5. All right, this is basically the structure of the do while loop. ये आउटपुट वही देगा 1 2 3 4 5 जो हमारा while loop दे रहा था. अभी just one second, I want to show you the dry run with the different color. See, C is equal to 1 and हम लूप के अंदर इंटर हो गए और यहां पर C प्रिंट हुआ. C की वैल्यू कितनी है? 1 and C is equal to C plus 1. C will be 2 and 2 less than 5. क्या 2 5 से छोटा है? Yes, 2 is less than 5. अब हम वापस ऊपर जाएंगे and C will print that's it 2. C equal to C plus 1 3 and 3 less than 5. Yes. अब हम वापस फिर ऊपर जाएंगे बिकॉज कंडीशन अभी ट्रू है एंड C विल प्रिंट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 3. C इक्वल टू C प्लस 1 4 लेस देन 5. करेक्ट, कंडीशन इज स्टिल करेक्ट. तो हम वापस ऊपर जाएंगे एंड C विल प्रिंट दैट इज 4. C इक्वल टू C प्लस 1 5. Now 5 is less than equal to, not less than but equal to 5. Condition is still true. And finally the 5 will print. After that C equal to C plus 1 6. Now 6 is not less than equal to 5. Condition is completely false. Condition is completely false. So this is the result of do while. And this is the result of while. Wait, I will show you the result of do while. 1 second. यहां पर हम एक चीज लिख देते हैं for your identification, please. Just 1 second, please. Please 1 second. I want to clear all this. Just 1 second.
Please. Okay. System do while output. Copy. Copy. And while output. Okay. And 1 second, please, just a semicolon there. Okay. This is the comment section actually. Removing. Now, there is no error. Okay, 1 minute. No difference. This is the result of while loop. This is the result of do while loop. No problem. Absolutely no problem. Clear. Both the result are coming perfectly same. But what is the difference? इससे difference तो समझ में नहीं आ रहा है ना? I will explain you the difference. Just 1 second, please. यहाँ पर C को 10 कर देते हैं. In that case, condition has become false. Condition has become false, तो ये loop execute नहीं करेगा. But do while के loop में अगर हम C की वैल्यू को 10 कर दें तो ये लूप जरूर एग्जीक्यूट करेगा एक बार और इसका आउटपुट आएगा 10. बाद में ये रियलाइज होगा कि कंडीशन फॉल्स है. जस्ट 1 second, प्लीज. ईच एंड एवरीथिंग इज इन द फ्रंट ऑफ यू. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? ये जो 10 आ रहा है वो रॉन्ग आउटपुट आ रहा है डू वाइल की वजह से, लेकिन वाइल ने कोई भी रिजल्ट ऑब्टेन और जनरेट नहीं किया क्योंकि कंडीशन फॉल्स करने पे वाइल लूप नहीं चलता है, लेकिन डू वाइल एक बार चल जाता है. जस्ट आई एम कमिंग बैक टू माय थियोरेटिकल रीजन. 1 second, please. I know most of the student understand. In which the first loop execute, then condition test. If condition false, in that case loop will execute at least once. मतलब एक बार जरूर चलेगा. और while loop बिल्कुल नहीं चलेगा. It's a very safe side loop. It's a very safe side loop. Okay. Now you are feel free to ask the question. ये 10 जो आ रहा है वो कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आ रहा है और कंडीशन फॉल्स है इस वजह से आ रहा है. 1 minute, please. Just for a second, please. Okay. I really appreciate your patience. Okay, fine. तो यहां पर कंडीशन फॉल्स थी, but it is executing. Condition is false, but executing one time. Hope you understand. यही difference आपको लिखना है. Now, I am just discussing some questions. Okay. Now we are coming to the practical and question part. 1 second. मैं कुछ लाइट वेटेड प्रोग्राम्स तो ले चुका हूं इन द फर्स्ट लेक्चर. मैं थोड़ा सा एक हायर लेवल प्रोग्राम लेना चाहता हूं. ओके. एक छोटा सा. जस्ट 1 minute, प्लीज. मैं इन सब को रिमूव कर रहा हूं बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ. ओके. ठीक है. ओके. जस्ट 1 minute. A particle dissolve to its half in 1 hour. A particle dissolved to its half in 1 hour. Write a program to print after how many hours a particle of 10 kg will become less than 250 gram. Okay, please read the question properly.
A particle dissolved to its half in 1 hour. एक पार्टिकल है जो अपने से आधा 1 घंटे में डिसॉल्व हो जाता है. 1 घंटे में अपने से आधा डिसॉल्व हो जाता है. अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है. आफ्टर हाउ मेनी आवर्स अ पार्टिकल ऑफ 10 kg विल बिकम लेस देन 250 ग्राम. 10 किलो का पार्टिकल 250 ग्राम से कम कितने कितने आवर्स के बाद होगा. With the help of while loop. Clear? You don't worry. I will explain. You only have to read the question. And please try to understand. आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. Please. I will make the program. You don't worry about that. Question is clear to all of you? I'm waiting for your response. Question is clear to all of you? Yes, sir. In the programming, the first important step is that you have to understand the question clearly. If you don't understand the question clearly, you cannot make the program. Okay. Acha. Everybody must be knowing that 10 kg is equal to 10,000 gram. Say yes or no? Yes, sir. 1 kg is equal to 1,000 gram. So 10 kg is equal to 10,000 gram. ये बात सबको मालूम है या नहीं मालूम है? यूनिट को सेम करने के लिए हमने ये किया. तो मेरा पार्टिकल जो है, माई पार्टिकल इज 10,000 ग्राम. माई पार्टिकल इज 10,000 ग्राम. दैट इज इक्वल टू 10 kg. एंड R इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिकल अभी डिसॉल्व होना स्टार्ट नहीं हुआ है. द पार्टिकल इज स्टिल नॉट डिसॉल्विंग. कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? वाइल कब तक चेक करना है? जब तक पार्टिकल 250 ग्राम से बड़ा या बराबर रहे. जब 250 ग्राम से कम हो जाए तो हमारा लूप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा. अब पार्टिकल अपने से आधा डिसॉल्व हो, ये कैसे किया जाए? जस्ट 1 सेकेंड प्लीज. Just 1 second, please. I just want to move to the theoretical section. Suppose particle is 100. तो इसको आधा कैसे किया जाए? इसको आधा हम ऐसे कर सकते हैं. P is equal to P divided by 2. So P will be equal to 50. Say yes or no? किसी भी चीज को आधा करने के लिए हम by 2 कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं, नहीं कर सकते? Okay. Most of the student is saying sir कर सकते हैं. Okay. Now coming back. P is equal to P by 2. इसका मतलब पार्टिकल अपने से आधा डिसॉल्व हो गया. अगर हो गया है तो हम आर्स को इंक्रीज कर देंगे. मतलब I will increase the R. मतलब R हमारा 0 है तो 1 हो जाएगा. Understand? Now my program is over. Okay, my program is over. बस इतना ही हमें करना था. और कब तक करना है? जब तक पार्टिकल 250 ग्राम से अबव है या बराबर है. और जैसे लेस हो जाएगा, my program will immediately get over. Okay, कर सकते हैं. Okay, 1 minute. System.out.print after you don't worry, I will explain everything. After h hours, मतलब इतने घंटों के बाद जो चीज हमको एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करानी होती है उसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं, और जो चीज विदाउट कोट्स लिखी होती है उसकी वैल्यू प्रिंट हो. जस्ट 1 मिनट. अब मैं आप लोगों की हेल्प से इसे ड्राई रन करूंगा. माई पार्टिकल इज, इसका आंसर एक रफली अगर हम कैलकुलेट करें
तो अराउंड 6 के आसपास आएगा। हम चेक करते हैं H कितना है। क्या पार्टिकल 250 ग्राम से अबव है? यस, इट इज वेरी मच अबव, कंडीशन इज ट्रू। तो P इज इक्वल टू P/10। P कितना हो जाएगा? 10,000 ग्राम का 5,000 5,000. और H इज इक्वल टू H+1, यानी कि H की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 घंटे के बाद पार्टिकल 500 ग्राम हो गया, 5,000 ग्राम हो गया, सॉरी 5,000 ग्राम हो गया। अब ऊपर आएंगे, क्योंकि लूप चल रहा है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी लूप ब्रेक नहीं हो सकता। P ग्रेटर देन इक्वल टू 250, यस, स्टिल ग्रेटर देन। तो P इज इक्वल टू P/2। अब P कितना हो जाएगा? 2,500. 2,500, वेरी गुड। और H इज इक्वल टू H+1, माई आर्स विल बी 2। मतलब 2 घंटे के बाद पार्टिकल 2,500 ग्राम की स्टेट में आ गया, बट P इज स्टिल ग्रेटर देन 250 ग्राम। तो P इज इक्वल टू P/2। अब कितना हो जाएगा? 12 250 ग्राम, 2,500 ग्राम। 2,500 ग्राम को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा? इतना ही आएगा। यस सर। अराउंड इतना ही आएगा ना। और ये R कितना हो जाएगा? 3। क्या P ग्रेटर देन 250 है? यस। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 12, तो 625। 620। और ये कितना हो जाएगा? क्या P ग्रेटर देन 250 है? यस, अभी भी है। तो अगर हम 625 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 625 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। मतलब अगर हम एक राउंड फिगर में लें तो 312.5। 314 point. इतना ही रहेगा। मतलब हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं ना, ठीक है। P इज ग्रेटर देन 250, यस। तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 205. तो 156। 150। 56। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब देखो, क्या P ग्रेटर देन 250 है? नहीं। My condition is false. Now P is 156 and 156 is not greater than 250. So my condition will be false. तो अब हमारा आउटपुट आएगा ऐसे। आउटपुट कैसे आएगा? प्लीज आराम से समझो। पहले लिख कर आएगा आफ्टर। पहले क्या लिख कर आएगा? आफ्टर। यहां लिख रहे हैं आफ्टर। आफ्टर के बाद ये H विदाउट कोट्स है, तो H की वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 6। उसके बाद आर्स लिख कर आएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही आउटपुट आना चाहिए। 1 मिनट प्लीज, just 1 minute please. Compiling. There is no error in my program, okay? And I just want to execute. Program is executing in the background. Can you please compare the answer to my dry run? Can you please compare the answer to my dry run? Can you please confirm? Is it clear to all of you or not?
आराम से बताइए मुझे, रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई. Clear to all of you, or you need any clarification from my side? Should I explain once again, or do you all, it is clear to all of you? Please, somebody is asking the question. Clear, very good. Okay, now I want to do one more thing. मैं चाहता हूं कि ये सारा P जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है वो भी हमें डिस्प्ले हो. Yes, yes, Madhav, please ask the question. Immediately I respond. Okay, I will explain. Just 1 minute. See, first of all, I want to clear this drawing. Okay. Now, just I want to tell you one thing here. Just after dissolving, I want to print. मतलब हर स्टेज पर, ऑन एवरी स्टेज, जैसे जैसे P डिसॉल्व हो रहा है वो भी मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं. तो पार्टिकल, आई वांट टू प्रिंट द पार्टिकल डिसॉल्व स्टेट. जैसे जैसे पार्टिकल डिसॉल्व होता जाए हमें वो भी डिस्प्ले करना है. ऑन एवरी स्टेज कितना कितना पार्टिकल में डिसॉल्व आ रहा है. नाउ लुक एट दिस. कुछ ऐसा ही हम लोगों ने ड्राई रन में कैलकुलेट किया था. आर यू ऑल विथ मी? द सेम थिंग वी हैव सीन इन द ड्राई रन. 5000, then 2500, then 1250, then 625, then 320. इससे हमने एक चीज और सीखी. when we print any statement inside the loop, when we print any statement inside the loop, when we print any statement inside the loop, जब हम कोई statement print करते हैं inside the loop, so that statement will print according to the number of repetition of the loop. तो जितनी बार हमारा loop execute होगा उतनी बार ये सारे statement execute होते रहेंगे. This is one statement, this is second statement, this is third statement. These are all the statement. ये जो open bracket और closing bracket के बीच में आ रहे हैं statement, ये सारे looping statement हैं. ये सारे स्टेटमेंट लूप के साथ साथ एग्जीक्यूट होंगे और ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब लूप हमारा कंप्लीटली ओवर हो जाएगा. द बिलो स्टेटमेंट will execute after completing the loop. Understand? But these are all the statement execute according to the loop, parallelly according to the loop. Hope you understand what I'm trying to say. 1 minute. Sir, can you do the dry run one more? This is clear to all of you? You can do the dry run on the paper once again. एक बार इस पेपर पे आप लिख करके इस प्रोग्राम को दोबारा ड्राई रन कर सकते हैं. यहां पर P/2 हो रहा है, यहां पर प्रिंटिंग हो रही है, यहां पर आपका H = H+1 हो रहा है. Okay? It's a very simple dry run procedure. You just write down this program in a copy. I am just sending this in your group. And if you face any problem while doing the dry run, please let me know. I am just pasting. Clear. Okay. Someone is asking the question that how we print R's also. So here I am just cutting this line. 1 minute. Here, just 1 minute.
after H, after RH, println P. मतलब अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, हर आर्स के बाद कितना पार्टिकल डिसॉल्व हुआ वो हमें बताएगा। मतलब आफ्टर R1 कितना पार्टिकल डिसॉल्व हुआ, आफ्टर R2 कितना पार्टिकल डिसॉल्व हुआ, और एक लाइन और ब्रेक कर लेते हैं ताकि हर आउटपुट के बीच में एक गैप आ जाए। आई विल शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सी, होप यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। पार्टिकल डिसॉल्व स्टेट, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर भी है। आफ्टर 1 hour particle dissolve state 5000. Okay, just okay, see, after 1 hour 1 the particle dissolve state 5000, after R2 the particle dissolve state 2500, 3 ये 4 ये, मतलब हर hours के बाद, and finally after the 6th hour you will get this much dissolved state, that is 250 less. तो मैंने दोनों स्टेटमेंट लूप के अंदर लिख दिए, मतलब आर्स का स्टेटमेंट भी और पार्टिकल डिसॉल्व स्टेट भी। तो जो चीज हम लूप के अंदर लिखते हैं वो लूप के साथ साथ एग्जीक्यूट होती है, और जो स्टेटमेंट हम लूप के बाहर लिखते हैं वो तब एग्जीक्यूट होता है जब पूरा लूप हमारा ओवर हो जाए। कैन यू प्लीज कंफर्म दिस लाइन? कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप हमें फौरन बताएं, ठीक है? देखने के बाद भी बता सकते हैं। डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा लाइट लेना चाह रहे हैं। राइट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम। इसमें इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम इसमें नेक्स्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। और राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and print the table up to 10 in table format. For example, 2 की टेबल हमें जनरेट करनी है इस तरह से, 2 क्रॉस 1 is equal to 2 and 2 क्रॉस 2 is equal to 4 and 2 cross 10 is equal to 20, suppose. The question is clear to all of you? क्या इसे मैं बनाऊं? इसे मैं बनाऊं? इससे आपको कुछ चीजें और क्लियर होंगी, कुछ चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है? क्वेश्चन आप आराम से देख लें जब तक मैं यहां लिख रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। स्कैनर OB इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, क्योंकि इनपुट इन्वॉल्व हो गया, डेफिनेटली वी हैव टू यूज द स्कैनर क्लास। C is equal to 1, comma D. So first of all, according to the question, we have to take the input value, enter number, n is equal to ob dot next int, और ये काम हमें while loop से ही करना है, ओके? while c less than equal to 10, क्योंकि टेबल हमें 10 तक जनरेट करनी है। एक वेरिएबल हमने ऑलरेडी d ले रखा है, तो d इज इक्वल टू n इंटू सी। अंडरस्टैंड? इससे टेबल तो आ जाएगी लेकिन फॉर्मेट में नहीं आएगी, हमें फॉर्मेट में प्रिंट करना है। अच्छा, एक चीज और, c इक्वल टू सी प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इफ वी मिस
this step loop will be infinite. इनफाइनाइट मतलब होता है लूप हमेशा चलता रहेगा. अगर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मिस कर देते हैं तो लूप आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा, कभी ओवर नहीं होगा. दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, नेक्स्ट लेक्चर, कि व्हाट इज द इनफाइनाइट लूप. वो हम आपका नेक्स्ट लेवल में कवर करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है. ओके fine, no problem. Just one bracket is extra. No, I think okay, one bracket is missing. Scanner, of course, one line we have to include. Import java dot util dot asterisk. Okay, very important topic we are discussing. That's a while loop in our sessions. Okay, program is executed in the background. Okay, I have given the value of 2. Table is generating, no problem, but not in a proper format. So how to create the format? It's a 1 minute work. 1 minute please. Here we have to write down like that. सबसे पहले हमको नंबर प्रिंट करना है जिसकी टेबल जनरेट हो रही है, और नंबर हमारा किस में है? n में, तो n. उसके बाद हमको क्रॉस का साइन लेना है, तो क्रॉस का साइन प्रिंट होगा तो हम उसे डबल कोट्स में ले रहे हैं. क्रॉस के साइन के बाद पहले हम फॉर्मेट यहां लिख लेते हैं. ओके, तो 2 हमारा आ रहा है n से. सपोज n की वैल्यू 2 है, तो 2. उसके बाद क्रॉस का साइन वो हमें डबल कोट्स में लिखना है. उसके बाद 1, ये हमारा काउंटर है, तो काउंटर वेरिएबल हमारा c में है, तो हम यहां पे c लिखेंगे. अब काउंटर के बाद हमें चाहिए इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन हमारा इससे आएगा, प्लस अब आ रहा है टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा किस में आ रहा है? डी में. आई जस्ट वांट टू सेव. अब हम देखते हैं कि क्या फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है. यू डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन बाय द ड्राई रन. अभी तो जस्ट प्रोग्राम बना रहे हैं. एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट 1 मिनट. और वैल्यूज पे इसको टेस्ट कर लेते हैं. क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, Yes, sir. इसको ड्राई रन कर लें. कैन वी डू द ड्राई रन? ड्राई रन कर लेते हैं. ड्राई रन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. सी, ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ड्राई रन के लिए n की वैल्यू हमने एज्यूम करी, n की वैल्यू. ओके, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, n की वैल्यू कितनी? 4. दो मिनट. अब c की वैल्यू कितनी है? 1. इट्स अ काउंटर वेरिएबल. d इज इक्वल टू n इंटू c. तो n को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो d में कितना आएगा? 4. अब यहां पर देखो कैसे प्रिंट हो रहा है. n क्या है? 4. उसके बाद क्रॉस का निशान, क्योंकि डबल कोट्स में है, एज इट इज प्रिंट होगा c की वैल्यू कितनी है? फिर इक्वल टू का निशान, क्योंकि वो डबल कोट्स में है तो एज इट इज प्रिंट होगा. उसके बाद d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? 4. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. c इक्वल टू c प्लस 1, 2. क्या 2 लेस देन 10 है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लूप, कंडीशन. जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपका लूप चलेगा. तो c is 2 लेस देन 10, यस. d is equal to n into c, तो 4 2s n into c. 4 2s, d में क्या आएगा? 8. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. n कितना है? 4, क्योंकि टेबल 4 की है. देन क्रॉस का साइन, देन c, व्हाट इज c? 2. देन इक्वल टू का साइन बिकॉज इट इज विदाउट कोट्स. देन d, हाउ मच d? c इक्वल टू c प्लस 1, c is 3.
क्या हम और डिटेल में जाएं या आपकी समझ में आ गया? आई थिंक सर समझ में आ गया। good. Now you have to do just to do the practice on these questions on the while. Sheet I have already given to you. Sheet आपको दी जा चुकी है. Sheet आपको दी जा चुकी है. Okay. So I'm just closing this session. Thanks to all of you. Just only 1 minute I will take. Just only 1 minute. 1 minute only. 1 minute. ये शीट है. ये शीट ऑलरेडी आपको दी जा चुकी हैं. तो इस शीट में आपको वाइल के क्वेश्चंस ट्राई करना है. क्लियर? वाइल के जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आप कीजिए. एनी प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी. So now finally I am just closing this session. Hope you don't have any problem. One student is asking the question. I will explain. Thank you, sir.